بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 19۔ سالار کچھ کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اسے زمین پر اتاری جانے والی صالح اور بہترین عورتوں میں سے ایک دی گئی تھی، وہ عورت جس کے لیے سالار نے ہر وقت اور ہر جگہ دعا کی تھی۔ کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے لے بیٹھا تھا۔ اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی آلائش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی بھینٹ نہیں چڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقویٰ کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کی کسی اسکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا اور اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سالار، تم سے ایک چیز مانگوں؟ امامہ نے جیسے اس کی سوچ کے تسلسل کو روکا تھا۔ وہ اس وقت حرم کے صحن سے باہر نکلنے ہی والے تھے۔ سالار نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے کیا مانگنے والی تھی۔ تم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھو۔ سالار کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے یہ مطالبہ کرنے والی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ آخری خطبہ؟ وہ بڑبڑایا۔ ہاں، وہی خطبہ جو انہوں نے جبل رحمت کے دامن میں دیا تھا، اس پہاڑ پر جس پر 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بچھڑ کر ملے تھے اور بخشے گئے تھے، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ ایک جھماکے کے ساتھ سالار کو پتہ چل گیا تھا وہ اسے آخری خطبہ کیوں پڑھوانا چاہتی تھی۔ اس نے سالار سے آخری خطبے کے بارے میں ایک دن پہلے بھی پوچھا تھا۔ تب وہ جبل رحمت پر کھڑے تھے۔ تمہیں آخری خطبہ کیوں یاد آ گیا؟ سالار نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے جبل رحمت پر نوافل ادا کر کے فارغ ہوئے تھے۔ یہیں پر آخری حج کے اجتماع سے خطاب کیا تھا نا انہوں نے؟ وہ جبل رحمت کی چوٹی کے دامن کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، سالار نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے نیچے جھانکا۔ ان دونوں کے کپڑے اب ہوا سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ تیز دھوپ اور لو جیسی ہوا کے تھپیڑوں میں وہ اس سے خون جما دینے والے سوال کرنے والی تھی۔ تمہیں ان کا خطبہ یاد ہے؟ امامہ نے اس سے پوچھا۔ سارا تو نہیں۔ سالار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹکا۔ بس چند احکامات یاد ہوں گے۔ اس نے بات مکمل کی تھی۔ جیسے؟ امامہ نے مدھم آواز میں دل گردہ نکال دینے والی بے رحمی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ سالار اس کی نظروں سے نظریں نہیں ہٹا سکا اور بڑی نازک جگہ پر کھڑا کر کے اس سے اس کی زندگی کا مشکل ترین سوال پوچھ رہی تھی، اور سوال کا جواب ان کے درمیان آنے والی خاموشی کے وقفے میں بھی تھا۔ مجھے پورا یاد ہے، اور آج یہاں کھڑی ہوں تو اور بھی یاد آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خطبہ یہیں کیوں دیا تھا، اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر جس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کے بعد آپس میں ملائے اور بخشے گئے۔ وہ اب کچھ سوچنے والے انداز میں بول رہی تھی۔ شاید اس لیے کیونکہ دنیا کا آغاز انہی دو انسانوں سے ہوا اور دین مکمل کرنے کا اعلان بھی اسی میدان میں ہوا، اور اسی میدان میں ایک دن دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ سالار لقمہ دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ امامہ ہنس پڑی تھی۔ تم ہنسی کیوں؟ سالار الجھا۔ تم تو کہہ رہے تھے تم کو وہ چند احکامات بھی یاد نہیں۔ اب یہ کیسے یاد آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان میں دین مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا؟ سالار لاجواب ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ امامہ کو کوئی توجیہ ڈھونڈ کر پیش کرتا، اس نے اسی پرسوچ انداز میں اس سے کہا، مجھے لگتا ہے وہ آخری خطبہ دنیا کے ہر انسان کے لیے تھا، ہم سب کے لیے، آج کے آدم اور حوا کے لیے۔ اگر وہ سارے احکامات جو اس آخری خطبے کا حصہ تھے ہم سب نے اپنائے ہوتے یا اپنا لیں تو دنیا اس بے سکونی اور بگاڑ کا شکار نہ ہوتی جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے آخری وصیت تھی تو ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ان کی سنت تو ایک طرف، ان کی وصیت تک ہمیں یاد نہیں، عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ کچھ جذباتی انداز میں بولتی گئی تھی اور سالار کو پتہ تھا یہ گفتگو کہاں جا رہی تھی۔
وہ عورت 9.5 साल पहले भी उसके पैरों के नीचे से जमीन निकाल सकती थी और तब भी निकाल रही थी। तुमको सूद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पता है ना? उस आखिरी खुतबे के। वो तलवार उसकी गर्दन पर आ गिरी थी जिससे वो अब तक बचने की कोशिश करता आया था। वो किस जगह पर खड़ी उससे क्या पूछ रही थी? ऐसी नदामत तो कभी खाना काबा में अल्लाह के सामने खड़ा होकर उसे नहीं हुई थी जितनी इस वक्त जबल रहमत पर इस जगह खड़े होकर उसे हुई थी जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के बारे में अहकामात दिए थे। सलार को चंद लम्हों के लिए लगा जैसे जबल रहमत पर पड़े हर पत्थर ने उस पर लानत भेजी थी। पसीना माथे पे नहीं पैरों के तलवों तक आया था। उसे लगा था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा था और बस वो थे जिनकी नजरों में उसके लिए मलामत नहीं अफसोस था। फिर वो वहां ठहर नहीं सका। सर झुकाए तेज कदमों से इमामा का इंतजार किए बगैर जबल रहमत से उतरता चला गया। वो रहमत का हकदार नहीं था तो जबल रहमत पर कैसे खड़ा हो पाता? उसे नीचे उतरकर महसूस हुआ था और आज इमामा ने वो सवाल हरम में कर दिया था। सलार ने उससे इस बार ये नहीं पूछा था कि वो उससे क्या मांगेगी। उसने उसके बिलमुकाबिल खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर हरम के सहन से निकलने से पहले इमामा से कहा था, मैं सूद जब भी छोड़ूंगा तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छोड़ूंगा। इमामा ने उसके ऐलान को सुना और फिर बड़ी ठंडी आवाज में कहा, तो फिर उनके ही लिए छोड़ दो। सालार हिल नहीं सका। ये औरत उसकी जिंदगी में पता नहीं किस लिए आई थी या लाई गई थी। उसको इकोनॉमिक्स और हिसाब के हर सवाल का जवाब आता था सिवाय इस एक जवाब के, तुम तो हाफिज कुरान हो सालार, फिर भी इतनी बड़ी वो इलेशन कर रहे हो कुरान पाक और अल्लाह के अहकामात की। इमामा ने उसके साथ हरम से बाहर जाते हुए कहा, तुम जानती हो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करवा रहा हूँ लोगों को। और इमामा ने सालार की बात काट दी, तुमको यकीन है कि तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो भी कर रहे हो उसमें सूद का ज़रा तक शामिल नहीं है। सालार कुछ देर बोल नहीं सका। फिर उसने कहा, तुम बैंकिंग के बारे में मेरा मौक़िफ़ जानती हो। चलो मैं छोड़ भी देता हूँ ये। बिल्कुल हर मुस्लिम छोड़ दे बैंकों को, उसके बाद क्या होगा? हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। उसने बड़ी संजीदगी से उससे कहा था, अभी तो हम हराम का ही सही मगर इस सिस्टम के अंदर रहकर इस सिस्टम को समझ रहे हैं। एक वक्त आएगा जब हम एक मतवाज़ी इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम ले आएंगे और वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने से नहीं आएगा। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? सूद जिन लोगों के खून में रिस्क बनकर दौड़ने लग जाए वो सूद को मिटाने का कभी नहीं सोचेंगे। सलार को एक लम्हे के लिए लगा इमामा ने उसके चेहरे पर तमाचा दे मारा था। बात कड़वी थी, बात सच्ची थी। थूक सकता था पर कड़वाहट ज़ायल नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अगर चीज़ों को बदल नहीं सकते तो अपनी काबिलियत एक गलत काम को अरूज पर पहुँचाने के लिए मत इस्तेमाल करो। वो इसी इमामा की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था और आज वो बीवी बनकर वैसी ही बातें दोहरा रही थी तो सलार को खफगी हो रही थी या शायद वो शर्मिंदगी थी जो उसे इमामा से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहने दे रही थी। उसने क्या क्या नहीं किया था इस औरत को मुती और फर्मा बरदार करने के लिए। और अभी कुछ देर पहले हरम में वो उससे अपनी मोहब्बत और अताअत का ऐलान भी कर रही थी, अपनी गैर मशरूत और दायमी मोहब्बत और वाबस्तगी का। और इस ऐलान के बाद भी वो सही और गलत की वाज़ेह तमीज़ लिए बैठी थी। जो सही था वो मोहब्बत और अताअत भी गलत नहीं कहलवा सकती थी इमामा हाशिम की ज़ुबान से। सालार सिकंदर को उससे एक बार फिर हसद हुआ था। क्या उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त आना था जब वो इमामा हाशिम के सामने द्यो बनता और बना ही रहता, बोना ना बनता, फरिश्ता दिखता और दिखता ही रहता, शैतान ना दिखता। मैं आखिरी खुतबा पढ़ूंगा। कहना वो कुछ और चाहता था और कह कुछ और दिया था। मुझसे सुनोगे? इमामा ने उसका हाथ थामते हुए हरम से बाहर निकलते हुए बड़े इश्तियाक से कहा, तुम्हें ज़ुबानी याद है? सालार ने बगैर हैरान हुए उससे पूछा था। इतनी बार पढ़ा है कि लगता है ज़ुबानी दोहरा सकती हूँ। वो अब जैसे कुछ याद कर रही थी। सुनाओ, सालार ने उसके साथ चलते हुए कहा। आदम मक्का की ज़मीन पर कई 100 साल बाद उस खुतबे को हव्वा की ज़ुबान से सुनने की तैयारी कर रहा था जो कई 100 साल पहले नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तकमील का ऐलान करते हुए दुनिया भर के इंसानों के लिए दिया था। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। हम उसी की हम्दो सना करते हैं और उसी से मदद व मग़फ़िरत चाहते हैं। हम उसी के सामने तौबा करते हैं और उसी के दामन में अपने नफ्स की खराबियों और बुरे अमाल से पनाह चाहते हैं। जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे
उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ऐलान करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और रसूल है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ और तुम्हें उसकी अताअत का हुक्म देता हूँ, और अपने खुतबे का आगाज़ नेक बात से करता हूँ। लोगों सुनो, मैं तुम्हें वजाहत से बताता हूँ, क्योंकि शायद इसके बाद कभी तुमसे इस जगह मिल ना सकूँ। अच्छी तरह सुन लो। तुम्हें जो हाजिर नहीं वो ये बातें गैर हाजिर लोगों तक पहुँचा दे। मुमकिन है अगले लोग यहाँ मौजूद लोगों की निस्बत इन बातों को ज़्यादा अच्छी तरह याद रखें और उनकी हिफाजत फरमाएं। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है और मैं आज से तमाम सूद का लदम करार देता हूँ, और सबसे पहले वो सूद माफ़ करता हूँ जो लोगों ने मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को अदा करना है। अलबत्ता तुमको अपनी असल रकम लेने का हक़ है, जिसमें ना औरों का नुकसान है ना तुम्हारा। ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे पास ऐसी चीज़ छोड़ी है कि तुम उसे मजबूती से थामे रहोगे तो मेरे बाद हरगिज़ गुमराह नहीं रहोगे, यानी अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और तुम लोग गलों से बचो, क्योंकि तुमसे पहले लोग उसी के बाइस हलाक हुए। देखो, मैंने हक़ पहुंचा दिया है। बस अगर किसी के पास अमानत रखवाई गई है तो वो इस बात का पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत पहुंचा दे, और बेशक तुम सबको अल्लाह की तरफ लौटना और हिसाब देना है। ऐ लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने अल्लाह का गवाह बनाकर उनको हलाल किया और उन्हें अपनी अमान में लिया है। तुम्हें अपनी औरतों पर हकूक़ हासिल हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी औरतों को तुम पर हकूक़ हासिल हैं। उन पर तुम्हारा हक़ ये है कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ दोस्ती ना करें जिसे तुम पसंद नहीं करते, और तुम्हारी हुर्मत की निगहबानी करें। और अगर वो तुम्हारी फर्माबरदार रहती हैं तो फिर ये उनका हक़ है कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो और उनके नान और नफ़के की ज़िम्मेदारी उठाओ। ऐ लोगों, तुम्हारे खून तुम्हारे माल एक दूसरे के लिए उसी तरह मोहतरम है जैसे आज का ये दिन, ये महीना और ये शहर। ख़बरदार, ज़माना जाहलियत की हर रस्म और तरीका आज मेरे कदमों के नीचे है, और जाहलियत के खून माफ़ कर दिए गए हैं। और पहला खून जो मैं अपने खूनों की तरफ से माफ़ करता हूँ वो इब्न रबिया हारिस का खून है। देखो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना, फिर एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। ऐ लोगों, ना तो मेरे बाद कोई नया पैगंबर या नबी आएगा, ना तुम्हारे बाद कोई नई उम्मत। मैं तुम्हारे पास अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और शैतान से खबरदार रहो, वो इस बात से मायूस हो चुका है कि इस ज़मीन पर उसकी परस्तिश की जाएगी, लेकिन वो इस बात पर राज़ी है कि तुम्हारे दरमियान फितना और फसाद पैदा करता रहे। इसलिए तुम उससे अपने दीन और ईमान की हिफाजत करो। जान जाओ कि हर मुसलमान अब दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान एक उम्मत हैं। किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से कुछ ले सिवाय इसके जिसे उसका भाई अपनी रजामंदी और खुशी से दे, और अपने नफ्स पर और दूसरे पर ज़्यादती ना करो। तुम सब आदम और हव्वा की औलाद हो, और आदम मिट्टी से बने थे। किसी अरब को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई बढ़तरी हासिल नहीं। बढ़तरी अगर है तो सिर्फ तकवा को, और अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो, और जो तुम खाओ उनमें से उनको खिलाओ, और जो तुम पहनो उनमें से उसी में से उनको पहनाओ। और अगर वो ऐसी ख़ता करें जो तुम मुआफ़ ना करना चाहो तो उन्हें फ़रोख्त कर दो, लेकिन कोई सज़ा ना दो। खूब सुन लो, अपने परवरदिगार की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज कायम करो, रमज़ान के रोज़े रखो, अपने माल की ज़कात खुशी से अदा करो, अपने हाकिम की अताअत करो, चाहे वो एक नाक कटा हबशी ही क्यों ना हो, और इस तरह अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। बाब 3, हासिल महसूल। किसी अपने की मौत इंसान को पल भर में किस तरह खाक कर देती है, ये कोई इमामा से पूछता। वसीम और साद की मौत ने उसे बताया था कि मारती तो मौत ही है, और जैसी मार वो इंसान को देती है कोई और तकलीफ़ नहीं देती। आब हयात पी कर भी इंसान अपनी मौत ही रोक सकता है, पर उनको जाने से कैसे रोक सकता है जो जान से भी प्यारे होते हैं। वो इस वक्त न्यूयॉर्क में थी, उसके यहाँ पहला बच्चा होने वाला था। वो 7वें आसमान पर थी, क्योंकि जन्नत पाँव के नीचे आने वाली थी। नेमतें थी कि गिनी ही नहीं जा रही थी। 3रा महीना था उसकी प्रेगनेंसी का जब एक रात सालार ने उसे नींद से जगाया था। वो समझ नहीं पाई थी कि वो उसे नींद से जगाकर क्या बताने की कोशिश कर रहा था, और शायद ऐसी ही कैफियत सालार की थी, क्योंकि उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे किन अल्फाज में इतने बड़े नुकसान की इतला दे। इससे पहले सिकंदर उस्मान और वो यही डिस्कस करते रहे थे कि इमामा को इतला देनी चाहिए या इस हालत में उससे ये खबर छुपा लेनी चाहिए।
सिकंदर उस्मान का ख्याल था इमामा को ये खबर अभी नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन सालार का फैसला था कि वो उससे इतनी बड़ी खबर छुपाकर सारी उम्र के लिए उसे किसी रंज में मुब्तला नहीं कर सकता। वो वसीम से फ़ोन और मैसेज के ज़रिए वैसे भी राब्ते में थी। ये मुमकिन ही नहीं था कि उसे एक आध दिन में उसके बारे में इत्तला ना मिल जाती। और दोनों कादियानियों की एक इबादतगाह पर होने वाले फायरिंग में दर्जनों दूसरे लोगों की तरह मारे गए थे। और इमामा चंद घंटे पहले एक पाकिस्तानी चैनल पर यह न्यूज़ देख चुकी थी। वो इस जानी नुकसान पर रंजीदा भी हुई थी एक इंसान के तौर पर, मगर उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि उन लोगों में उसके दो इतने करीबी लोग भी शामिल थे। उसे शुआ होता भी कैसे? वो इस्लामाबाद की इबादतगाह नहीं थी, एक दूसरे शहर की थी। साद और वसीम वहाँ कैसे पहुँच सकते थे? और वसीम तो बहुत कम अपनी इबादतगाह में जाता था। वो अगले कई घंटे गुमसो मानसू बहाए बगैर, सालार के किसी सवाल और बात का जवाब दिए बगैर एक बुत की तरह वहीं बिस्तर पर बैठी रही थी, यूं जैसे इंसान नहीं बर्फ़ की सिल बन गई थी, और बर्फ़ की सिल नहीं जैसे रेत की दीवार थी जो ढह गई थी। उसे लगा था वो अब कभी ज़िंदगी में अपनी उंगली तक हिला नहीं सकेगी, पाँव पर खड़ी नहीं हो सकेगी, सांस नहीं ले सकेगी, जी नहीं सकेगी। कोई ऐसे तो नहीं जाता है ऐसे। उसकी हालत देखकर सालार को शदीद पछतावा हुआ था। उसने सिकंदर उस्मान की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की थी, उसे अब समझ में आया था। सालार ने अपने एक डॉक्टर कज़न को बुलाया था घर पर ही उसे देखने के लिए। उसके बाद क्या हुआ था इमामा को ठीक से याद नहीं था। सालार को लम्हा लम्हा याद था। वो कई हफ्ते उसने उसे पागलपन की सरहद पर जाते और वहाँ से पलटते देखा था। वो चुप होती तो कई कई दिन चुप ही रहती, यूं जैसे उस घर में मौजूद ही नहीं थी। रोती तो घंटों रोती, सोती तो पूरा दिन और रात आंखें नहीं खोलती, और जागती तो दो दो दिन बिस्तर पर चंद लम्हों के लिए भी लेटे बगैर लाउंज से बेडरूम और बेडरूम से लाउंज के चक्कर काटते काटते अपने पाँव सुजा लेती। ये सिर्फ एक मौजज़ा था कि इस जहनी हालत और कैफियत में भी जिब्रील को कुछ नहीं हुआ था। वो जैसे ये फरामोशी कर बैठी थी कि उसके अंदर एक और ज़िंदगी परवरिश पा रही थी। जहन यादों से निकल पाता तो जिस्म को महसूस करता, और वहशत जब कुछ कम हुई तो उसने सालार से पाकिस्तान जाने का कहा था। उसे अपने घर जाना था। सालार ने उसे ये सवाल नहीं किया था कि वो किस घर को अपना घर कह रही थी। उसने खामोशी से 2 सीटें बुक करवा ली थी। मुझे इस्लामाबाद जाना है, उसने सालार के पूछने पर कहा तो सालार ने बहस नहीं की थी। अगर उसके घर वालों से मुलाकात उसको नॉर्मल कर देती तो वो इस मुलाकात के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। हाशिम मुबीन उनके हमसाए थे। उनके घर में आने वाली क़यामत से सालार सिकंदर का ख़ानदान बेखबर नहीं था। उन्होंने हाशिम मुबीन के घर जाकर उनसे दूसरे बहुत से लोगों के साथ ताज़ियत की थी। इस सदमे में भी हाशिम मुबीन ने बेहद सर्दमोहरी के साथ उनकी ताज़ियत कबूल की थी। सिकंदर उस्मान को उम्मीद नहीं थी कि वो इमामा से मिलेंगे। उन्होंने सालार से अपने खदशात का जिक्र ज़रूर किया था, लेकिन इमामा को जिस हालत में उन्होंने देखा था और सालार को एक कोशिश कर लेने से रोक नहीं सके थे। हाशिम मुबीन ने न सिर्फ फ़ोन पर सिकंदर उस्मान से बात करने से इनकार किया था, बल्कि सालार को उनके घर पर गेट से अंदर जाने नहीं दिया था। सिकंदर उस्मान और वो दोनों मायूसी के आलम में वापस आ गए थे। सालार उसके सामने बेबस था, लेकिन वो पहला मौका था जब उसने इमामा के सामने हथियार नहीं डाले थे। उसने इमामा को उसके घर जाने की कोशिश भी नहीं करने दी थी। तुम्हें अगर घर जाना है तो पहले अपने बाप से बात करो, वो इजाज़त दें तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मैं तुम्हें बगैर इजाज़त के वहाँ गेट पर गार्ड्स के हाथों जलील होने के लिए नहीं भेज सकता। उसके रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद सालार नहीं पिघला था। इमामा ने अपने बाप से फ़ोन पर बात की इजाज़त लेने की हामी भर ली थी, मगर उस फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया था। जो चीज़ सालार उसे नहीं समझा सका था वो उस फ़ोन कॉल में हाशिम मुबीन ने समझा दी थी। ये जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ। तुम जिन लोगों के साथ जा बैठी हो उन्हीं लोगों ने जान ली है मेरे दोनों बेटों की। अब तुम अपने घर आना चाहती हो, कातिलों के साथ मेरे घर आना चाहती हो। वो हिज़यानी अंदाज में चिल्लाते और उसे गालियाँ देते जा रहे थे। तुम लोग और हम लोग, फ़र्क कितना बड़ा था इमामा को याद आ गया था। आज भी इस सब के बाद भी, इस गम के साथ भी उसे पछतावा नहीं था कि उसने वो मज़हब छोड़ दिया था। उसे याद आया था एक बार उसके बाप ने कहा था वो एक दिन गिड़गिड़ाते हुए उसके पास आकर माफ़ी मांगेगी, और वो आज यही करने जा रही थी। पर क्यों करने जा रही थी? खून का रिश्ता था, तड़प थी, वो खींची थी उनकी तरफ। अब जब उसे उनसे पहले की तरह जान का खौफ नहीं रहा था, पर खून का रिश्ता सिर्फ उसी के लिए क्यों था? तड़प थी तो सिर्फ उसको क्यों थी? शायद इसलिए कि उसके पास उन लोगों के सिवा और कोई खूनी रिश्ता नहीं था। वो अपने लोगों के पास थे,
اس کے پاس سالار تھا، لیکن وہ خونی رشتہ نہیں تھا، محبت کا رشتہ تھا۔ خون جیسی تڑپ پیدا ہونے کے لیے ابھی اس کو کئی اور سال چاہیے تھے۔ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں معاف ہونے کے باوجود اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جو غم اسے وہاں کھینچ کر لایا تھا، وہ غم اس گھر میں جا کر پچھتاوے میں بدل جاتا۔ ہاشم مبین کی مزید کوئی بات سننے کی بجائے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ اس گھر میں اور اس دنیا میں اب اس کا خونی رشتہ کوئی نہیں رہا تھا۔ اس گھر میں صرف وسیم اس کا تھا، اور وسیم جا چکا تھا۔ وہ ایک کھڑکی جو پچھواڑے میں کھلی تھی ٹھنڈی ہوا کے لیے، وہ آندھی کے زور سے بند ہو گئی تھی۔ اب اس کھڑکی کو دوبارہ کبھی نہیں کھلنا تھا۔ اور سالار سکندر کے ساتھ واپس نیو یارک لوٹ آئی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ نارمل ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ وقت لگنا تھا، امامہ بھی ایسا ہی سمجھتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہاں موجود تنہائی نے امامہ کے اعصاب کو ایک بار پھر مفلوج کرنا شروع کر دیا تھا۔ سالار پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور ساتھ ایک آرگنائزیشن میں ہفتے میں 3 دن کے لیے پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ وہ صبح 5 بجے گھر سے نکلتا تھا اور رات کو کہیں 8-9 بجے اس کی واپسی ہوتی تھی، اور واپسی پر وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ 1-2 گھنٹے ٹی وی دیکھ کر کھانا کھا کر وہ دوبارہ سو جاتا تھا۔ امامہ 12-14 گھنٹے ایک بیڈ روم کے 8ویں منزل کے اس اپارٹمنٹ میں بالکل تنہا ہوتی تھی، اور تنہائی کا یہ دورانیہ سالار کے گھر آ جانے کے بعد اس کے سو جانے پر اور بڑھ جاتا تھا۔ ایک بیڈ روم، ایک لاؤنج اور کچن ایریا کے علاوہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا جہاں وہ جا کر کچھ وقت گزار سکتی۔ گھر کا کام بھی بہت مختصر تھا کیونکہ گھر چھوٹا تھا۔ نیند اسے آتی نہیں تھی اور گھر میں کوئی مشغلہ نہیں تھا صرف سوچنے کے علاوہ۔ وسیم اس کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ روز اپنے فون میں موجود اس کے اور اپنے میسیجز کو، جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے، بیٹھ کر پڑھنا شروع کرتی، پھر گھنٹوں اسی میں گزار دیتی۔ اسے وہ سینکڑوں میسیجز اب جیسے زبانی حفظ ہو چکے تھے، لیکن پتہ نہیں خود اذیتی کی وہ کون سی سیڑھی تھی جس پر بیٹھی وہ ہر روز ایک ہی کام بھیگی آنکھوں کے ساتھ کرتی رہتی تھی۔ اپنے وجود کے ناکارہ پن اور زندگی کی بے معنویت امامہ ہاشم نے جیسے اس دور میں محسوس کی تھی، اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اس کا اپنا وجود اس کے لیے سب سے بڑا بوجھ بن گیا تھا۔ اسے وہ کہاں پھینک آتی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بستر پر صبح نیند سے آنکھ کھلتے ہی اسے یہ خیال آتا تھا، ایک اور دن، پھر وہی روٹین، پھر وہی تنہائی، وہی ڈپریشن۔ وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی، اور سالار ایک بار پھر اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے لیے کیا کرتا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، جس سے وہ پھر پہلے جیسی ہو جاتی۔ 14 گھنٹے تک اپنے کاموں اور سفر سے خوار ہونے کے بعد وہ تھکا ہارا گھر آنے پر بھی امامہ کے کہنے پر کہیں بھی چلنے کے لیے تیار رہتا تھا، اور کہیں نہیں تو اپارٹمنٹ کے باہر پارک تک، لیکن وہ اس سے کہیں جانے کا کہتی ہی نہیں تھی۔ وہ صبح سویرے گھر سے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نکلتا، اور رات کو جب گھر واپس آنے کے لیے ٹرین میں بیٹھتا تو بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا۔ امامہ کی ذہنی کیفیت نے جیسے اس کے اعصاب شل کرنے شروع کر دیے تھے۔ جبریل کی پیدائش میں ابھی بہت وقت تھا، اور وہ اسے اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ ہر وقت نظر آتی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ہی ایک رات امامہ نے کہا تھا، مجھے پاکستان جانا ہے۔ کیوں؟ سالار کو اپنا سوال خود بے تکا لگا، اور بہت دیر چپ رہی، یوں جیسے اپنے الفاظ جمع کر رہی ہو۔ پھر اس نے جو کہا تھا اس نے سالار کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ کل میں نے وسیم کو دیکھا، وہاں کچن کاؤنٹر کے پاس وہ پانی پی رہا تھا۔ 2 دن پہلے بھی میں نے اسے دیکھا تھا، وہ اس کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی، اور وہ شاید اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کے لیے رکی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کچھ عرصہ اور یہاں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی، یا شاید ہونا شروع ہو چکی ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی۔ اس نے چند لمحوں کے بعد دوبارہ بات کرنی شروع کی تھی۔ وہ اگر واہموں کا شکار ہو رہی تھی تو وہ اس کی بات سے واقف بھی تھی۔ وہ اس سے فرار چاہتی تھی تو یہ جیسے ایک مثبت علامت تھی۔ ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں، مجھے صرف چند ہفتے دے دو سب کچھ وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ سالار نے چند لمحوں میں فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پی ایچ ڈی کر رہے ہو، تم کیسے میرے ساتھ جا سکتے ہو؟ میں پی ایچ ڈی چھوڑ دوں گا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ضروری نہیں ہے، تم اور تمہاری زندگی ضروری ہے۔ سالار نے جواباً اس سے کہا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں امامہ کی آواز بھر آئی، وہ کہہ نہیں پائی۔ اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی، اور اس بار وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ نہیں، تم ساتھ نہیں آؤ گے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ ساری زندگی تم قربانیاں ہی دیتے رہو میرے لیے؟ اب پی ایچ ڈی چھوڑ دو، اپنا کیریئر چھوڑ دو، تمہاری زندگی ہے، قیمتی ہے تمہارا وقت، تم کیوں اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال میرے لیے ضائع کرو؟ سالار نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کا یہ اعتراف اس کو خوشی دیتا، لیکن اب اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسی طرح کہہ رہی تھی،
मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं बेबस हूँ। मैं कोशिश के बावजूद भी अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रही। और अब वसीम को देखने के बाद तो मैं और भी वो बोलते बोलते रुक गई। सिर्फ उसके आंसू और हिचकियाँ थी जो नहीं थमी थी। सालार, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत काबिल हो, तुम मुझसे बहुत बेहतर औरत डिजर्व करते हो। मैं नहीं। आई एम अ वर्थलेस वुमन, आई एम अ नोबडी। तुम्हें ऐसी औरत मिलनी चाहिए जो तुम्हारे जैसी हो, तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सपोर्ट करे, मेरी तरह तुम्हारे पाँव की बेड़ी ना बन जाए। और ये सब कुछ तुम आज कह रही हो जब हम अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बच्चा भी मर जाएगा। उसने अजीब बात कही थी। सलार ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने हाथ छुड़ा लिया। तुम क्यों इस तरह सोच रही हो? उसे कुछ नहीं होगा। सलार पता नहीं किसको तसल्ली देना चाहता था, लेकिन इस वक्त इमामा से ज़्यादा उसकी अपनी हालत काबिल रहम हो रही थी। तुम बस मुझे पाकिस्तान भेज दो। इमामा ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था। उसने एक बार फिर वही मुतालबा दोहराया था। मैं तुम्हें इस्लामाबाद नहीं भेजूंगा, सलार ने दो टक अंदाज में कहा। मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहती। मुझे सईदा अम्मा के पास जाना है, मैं वहाँ रह लूँगी। वो उसकी बात पर हैरान हुआ था। सईदा अम्मा नहीं, तुम डॉक्टर साहब के पास चली जाओ। अगर वहाँ रहने पर तैयार हो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ, सलार ने यकदम कुछ सोच कर कहा था। ठीक है, मुझे उन्हीं के पास भेज दो। वो एक लम्हे के लिए भी तामुल के बगैर तैयार हो गई थी। अगर तुम वहाँ जाकर खुश रह सकती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें भेज देता हूँ। वापस कब आओगी? वो पहला मौका था सारी गुफ्तगू में जब इमामा ने उससे नज़र मिलाई थी। ये दिल बस ख्वारी का नाम है। इज़्ज़त यूँ उतार कर रखता है जैसे इज़्ज़त कोई शय ही नहीं। बेइज्जती को इतना मामूली कर देता है कि इंसान आँख में पानी बनाकर रखने लगता है, पी जाने लगता है। वो सारी दुनिया को अपनी ठोकर पर रखने वाला मर्द था, और रस्सी डाली थी तो अल्लाह ने उसके गले में मोहब्बत की रस्सी डाली थी। रस्सी थी, जंजीर नहीं थी, लेकिन बेड़ी से ज़्यादा बड़ी और कड़ी थी। इमामा को लगा था वो उससे नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी, और नज़रें मिला के करना ही क्या था? कुछ कहने के लिए लफ्ज़ ही नहीं थे। जो भी गिले थे अपनी ज़ात से थे, सारी खामियां अपने अंदर थीं। सलार को वो जैसे बदकिस्मती के इस चुंगल से आज़ाद कर देना चाहती थी जिसमें वो खुद सालों से फंसी हुई थी, और शायद फंसा ही रहना था उसे। उसकी बेलोस बेमोल मोहब्बत का वो इतना सिला तो देती उसे कि इस बदकिस्मती में उसे ना घसीटती, उसे आगे बढ़ जाने देती। वापस आ जाना। उसकी लंबी खामोशी को सलार ने मुख्तसिर ज़ुबान दी थी। मशवरा नहीं था, मिन्नत थी। ख्वाहिश नहीं थी, बेबसी थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इमामा ने उसकी बात खामोशी से सुनकर खामोशी से ही जवाब दिया था। वो एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान वापस चली आई थी और जैसे किसी कैद से छूट आई थी। अमेरिका से वापस आने से पहले वो घर में पड़ी हुई अपनी एक एक चीज़ वहाँ से हटा आई थी। यूं जैसे रगड़ रगड़ कर सलार के घर और ज़िंदगी से अपने वजूद और यादों के सारे नकूश को मिटा देना चाहती हो। जैसे सलार की ज़िंदगी को हर इस नहुसत से पाक साफ कर देना चाहती हो जो उसके साथ उसके घर और ज़िंदगी में दाखिल हुई थी। वो वापस ना आने के लिए जा रही थी। सलार को उसका एहसास उसकी एक एक हरकत से हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उसे जाने देना चाहता था। अगर फासला और उससे दूरी उसे सेहतियाब कर सकती थी तो वो चाहता था वो दूर हो जाए, लेकिन ठीक हो जाए। जिस शाम उसकी फ़्लाइट थी वो एक बार फिर दिल गिरफ्ता हो रहा था। उसे लगा था अब वो घर टूटने वाला था जो उसने बड़ी मुश्किल से बनाया था।